So our next topic or next chapter is enhancement of food production. So in improvement in food production. So enhancement means what? Increase. The meaning of enhancement is nothing but increase or boost. Okay, in food production, increase or boost. So how we can increase our food production, our crops? If suppose in 1 acre the crop produce 1 ton of wheat, okay, so if we increase the production, then in 1 acre we can produce 2 ton of wheat. Same land, same resources are there, okay, but the quantity of that food material is increased from 1 ton to 2 ton. Okay, how we can increase the productivity or the amount of food? Okay, so in this chapter, how we can enhance or increase the food production? So certain techniques are given in this chapter. Okay, we will see one by one. So prior to that, we have to see the deleted syllabus. So here these points are deleted. Enhancement in food production. So 11.2 plant breeding, then 11.3 tissue culture, 11.4 and 11.6. So these points are not included in your syllabus. So we also uh, cannot teach these points. So uh, if you have any problem in plant breeding, tissue culture, single cell protein and animal husbandry, so you can ask personally. But the deleted or omitted syllabus, due to the lack of time, we cannot take these points. Okay, so we have to move directly from 11.1 to 11.5. Okay, and from 11.5 to 11.7. So other this chapter is very much big, so other points are there in this chapter, so we will take that. Okay, so understand what is the omitted syllabus. Okay, so we will see one by one. First point is improvement in food production. So how we can improve our food production? Okay, so we know that food is a basic need. Food is one of the basic need, as it gives us energy for everything. So from the food we can get energy. Okay, food gives us energy. Okay, so it is we have basic need of food. So it keeps us alive, जिंदा रखते हैं वो. फूड खाने से हम जिंदा रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं. ओके, सो इट कैन बी डिफाइन एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड. फूड को कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग विच इज सॉलिड और लिक्विड, which when swallowed then it digested and assimilated in body and keeping us well. तो ऐसे पदार्थ जो सॉलिड या लिक्विड होते हैं और उन उनको खाने से, उनको स्वेलो करने से डाइजेशन होता है उनका, और उसका एसिमिलेशन होता है बॉडी के अंदर, और एसिमिलेशन होने के बाद वो हम उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हम अच्छे रहते हैं या हेल्दी रहते हैं. फूड कीप अस हेल्दी ड्यू टू देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज और न्यूट्रिशंस. द due to the ingestion of food material or
due to the eating of food material, we become healthy. Okay, so that food is become organic in nature, energy rich, non poisonous, एडिएबल, खाने लायक होता है फूड, नरिशमेंट न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये फूड के बारे में है। तो फूड की डेफिनेशन उन्होंने बोली है कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड विच गिव्स एनर्जी एंड वी आर इट कीप्स अस अलाइव स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। So as the definition of food is anything which is solid or liquid when we swallowed, then it is digested and assimilated in the body and keeping us healthy or well. So food is organic, energy rich, non poisonous, edible, and which gives the nourishment to us. So green plants synthesize their own food material. We know that green plants synthesize their own food material थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट, क्योंकि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं और इस वजह से ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन। तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, कैन नॉट सिंथेसाइज द फूड, okay, on their own. So green plants synthesize their food with itself, but humans or other animals cannot synthesize their food. So we dependent on plant for food. Okay, we directly dependent on food material or plant for food. फेमाइन मीन्स जो क्या बोलते हैं, ड्रॉट होते हैं, ड्रॉट मतलब मराठी में उसको बोलते हैं दुष्काळ। तो फेमाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डर्थ ऑफ फूड। फूड की कमी कब होती है? जब फेमाइन आता है। तो ड्राई फेमाइन या वेट फेमाइन, दो तरह के फेमाइन होते हैं। ड्राई फेमाइन में बारिश बिल्कुल भी नहीं गिरती या बहुत ही कम मात्रा में गिरती है अर्थ पे, इस वजह से क्रॉप्स जो है वो मुरझा जाते हैं और उस साल का प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है। और अगर वेट फेमाइन आया, मतलब बहुत बारिश आई, ज़रूरत से भी ज़्यादा बारिश आई, तो ज़मीन में इतना पानी आ जाता है कि वो जो क्रॉप्स होते हैं वो सड़ते हैं, है ना। तो इस वजह से भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है। तो दोनों तरह के जो है फेमाइन, वेट फेमाइन एंड ड्राई फेमाइन, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज करने में। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है अमाउंट उसका कम होता है ड्राई या वेट फेमाइन से। बिसाइड्स द रैपिड एंड ड्रामेटिक इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक रीज़न है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों कम होता है, और दूसरा रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ रही है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन टाइम बाय टाइम बहुत ही बढ़ रही है। तो ऐसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर खाना खिलाना है तो हमको हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फॉर फूड, देयर देयर इज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस वजह से हमको, अगर 1 एकड़ में हम इतना खाना बना रहे हैं तो 2 एकड़, एक ही एकड़ में हमने 2 टन खाना बनाना चाहिए। ओके, तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये हम फूड प्रोडक्शन में करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही बढ़ रही है। तो इतनी पॉपुलेशन के लिए जो खाना है वो ज़्यादा लगने वाला है, इस वजह से जो फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाना पड़ेगा? क्वालिटी भी उसकी बढ़ानी पड़ेगी एंड क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज, न्यूट्रिटिव मतलब क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशन का लेवल, तो वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने जो है वो फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग हेल्प्स अस टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो हमको प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग जो है वो अगर हम इम्प्रूव करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग अच्छे से करते हैं, तो फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या कि
प्लांट जो है उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन करके उनमें ऐसे क्वालिटीज़ डालना है कि जिसके वजह से उसका फूड प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। या एनिमल ब्रीडिंग की भी ज़रूरत वही है, क्योंकि एनिमल भी हम खाते हैं, तो मीट जो है, मांस, मिल्क या मछली जो है, फिश, तो इनका प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाए तो हमारे जो खाने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें आपने पढ़ा कि फूड जो है वो क्या है, फूड से हमें क्या मिलता है, और जो न्यूट्रिशन जो फूड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। तो इस तरह से हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसमें अभी 11.2 के बाद में सीधा 11.5 आएगा। ओके, तो 11.5 वाला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। ओके, तो ये है 11.5 वाला पॉइंट्स। तो वो है बायो फोर्टिफिकेशन। तो व्हाट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन? तो ये चैप्टर थोड़ा थेरोटिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज़म्स नहीं है, तो इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा आपको बोर लग सकता है। पर कुछ की टर्म्स है इसमें, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट ये चैप्टर नहीं है, इजी ही है। सिर्फ थोड़ी टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी होगी, तो उससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो इट इज़ मेथड इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। ब्रीड मतलब प्रोड्यूस। तो ये ऐसी मेथड है जिनसे हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करना है, तो उनमें हायर लेवल ऑफ विटामिन्स होते हैं। हालांकि नॉर्मल मेथड से किया जाए तो उनकी जो विटामिन्स की लेवल होती है वो कम होती है, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स, फैट्स, उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो उनकी जो क्वालिटी है वो कम होती है। मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा, हालांकि अगर ज़्यादा होगा, पर फिर अगर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो गए, तो ज़्यादा जो क्वालिटी होके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, तो जो वीट है या राइस है या जो बीन्स है, तो अलग अलग क्रॉप्स जो है उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब क्वालिटी का मीनिंग है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट की लेवल है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स, तो बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें होनी चाहिए। तो ये ऐसी मेथड है कि जिस मेथड से हम उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन कैन बी ओवरकम। तो मैल न्यूट्रिशन मतलब अंडर न्यूट्रिशन। कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहुत खाते भी है, पर उनके मतलब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो ऐसा खाना खाते हैं कि उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसा खाना खाने से, मतलब खाना बहुत खाते हैं पर न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से बॉडी को नहीं मिलता। तो वो न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि होगा तो मिलेगा, अगर फूड में ही न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बॉडी को नहीं मिल पाएगा। इस वजह से न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। तो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वेर कंसिडर्ड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो अगर ब्रीडिंग करनी है तो ये कुछ प्रोग्राम्स है इन्होंने दिए हैं। प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। ऑयल कंटेंट उसका समझो, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऑयल कंटेंट उसका बढ़ाना चाहिए, विटामिन का कंटेंट बढ़ाना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो मैंने हाईलाइटेड जो पॉइंट्स किए हैं वो बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब बायो मतलब क्या कि क्रॉप्स, एंड फोर्टिफिकेशन मतलब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ाना, तो उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन इज नथिंग बट दी एनहांसमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड क्वालिटी क्वांटिटी। ओके, सो इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो कि बायो फोर्टिफिकेशन कैन बी अचीव्ड through conventional selective breeding practices and also through the rDNA technology।
तो ये जो बायो फोर्टिफिकेशन है ये कैसे अचीव होगा, तो कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। तो कैसा है कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग, तो इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आर मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो रिकॉम्बिनेशन किया जाता है जो जीन सेगमेंट होता है। समझो कि न्यूट्रिशन के लिए विटामिन, समझो राइस का एक एग्जांपल लेते हैं हम। राइस में विटामिन ए होता है, गोल्डन राइस में। तो वो विटामिन ए प्रोडक्शन के लिए राइस में एक जीन सेगमेंट होता है, पर्टिकुलर जीन सेगमेंट होता है। तो वो जीन सेगमेंट के वजह से राइस में विटामिन ए तैयार होता है या प्रोड्यूस होता है। तो हम में भी जो एंजाइम वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो जीन सेगमेंट के वजह से होती है। समझो ये एक जीन सेगमेंट है, इसमें आपको पता है कि जीन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का एक टुकड़ा होता है उसको जीन्स बोलते हैं, या सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन्स। तो आपको पता है तो डीएनए कैसे बनता है कि बेस पेयर से बनता है डीएनए। उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन। तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। ओके, पर्टिकुलर वो सीक्वेंस होता है, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है कुछ ऐसे जीन सीक्वेंस से, पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस से, और ये प्रोटीन एक्ट्स एज अ हार्मोन। ओके, देन इट प्रोटीन एक्ट्स एज अ एंजाइम। ओके, प्रोटीन एक्ट्स एज अ मैसेंजर फॉर समथिंग। तो अलग अलग काम होते हैं प्रोटीन के हमारे बॉडी के अंदर। प्रोटीन एक्ट्स एज अ मसल प्रोटीन, बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बहुत सारे काम प्रोटीन ही करता है। इस वजह से प्रोटीन का जो हमारे जो डाइट है उसमें एक प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। उससे हमारी जो बॉडी है उनमें सब हार्मोन्स, एंजाइम्स, हमारी बॉडी की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, तो ये सब मेंटेन रहता है प्रोटीन्स की वजह से। तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में हमने लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में लिए तो भी चलेगा, पर प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिनसे हमारे बॉडी का रेशो, ग्रोथ का रेशो, एंजाइम्स, हार्मोन्स और मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे तरीके से होती है। तो ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो वही है कि अगर राइस में विटामिन ए अगर प्रोड्यूस करना है तो प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, और ये प्रोटीन्स बनेंगे हार्मो सेगमेंट से, डीएनए की सेगमेंट से। तो ये डीएनए का सेगमेंट अगर विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, समझो ये डीएनए का सीक्वेंस विटामिन ए का प्रोडक्शन करता है राइस में, तो ये इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए हमको राइस में। राइस के जीन सेगमेंट में अगर ये हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, डाल दिया, तो उनसे क्या बनेगा, विटामिन ए का प्रोडक्शन बनेगा। अब आपको बहुत ही रिसर्च की बात है कि वो कैसे डाला जाएगा, जीन सेगमेंट जो राइस है उसमें कैसे डाला जाएगा। तो वो आप अगर इंटरेस्ट हो तो सर्च कर सकते हो, या किताबों में ढूंढ सकते हो, पर आपको 12th स्टैंडर्ड में इतना डीप में नहीं है। तो सिर्फ आप ये ध्यान में लो कि राइस का प्रोडक्शन करने के लिए विटामिन, राइस में अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है विटामिन ए की अगर वो बढ़ाना है तो आपको जीन सेगमेंट्स जो है वो उनमें डालना पड़ेगा, और वो जीन सेगमेंट एक्सप्रेस होके बनाएगा विटामिन ए। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वो बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी आपको सीखने को मिलेगी। ओके, ये टेक्नोलॉजी भी आपको सीखने को मिलेगी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो वो है सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। तो इट फोकसेस ऑन मेकिंग प्लांट फूड मोर न्यूट्रिटिव एज प्लांट ग्रो और डेवलप। जैसे प्लांट ग्रो होता है तो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है प्लांट के अंदर जो फूड बनेगा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, तो वो हम देखेंगे। ओके, फोर्टिफाइड मेज। फोर्टिफाइड मेज, मेज पता है आपको क्या होता है, पॉपकॉर्न वगैरह बनते हैं उससे, या कुछ अलग अलग खाने की चीज़ें भी बना सकते हैं।
तो फोर्टिफाइड मेज मतलब क्या कि ऐसे न्यूट्रिटिव मेज जिनमें जिन इनकॉर्पोरेट किया है, हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये जो दो अमाइनो एसिड है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, इनकी मात्रा ऐसे फोर्टिफाइड मेज में ज़्यादा होती है, तो इनकी कीमत भी ज़्यादा होगी, है ना। सिंपल मेज से फोर्टिफाइड मेज की कीमत ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसमें लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन नाम का जो अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी। वीट एटला 66, ये एक वीट का मतलब वीट की एक प्रजाति है, एटलास 66 स्पेसीज है ये। तो वीट में ये एक एडवांस एटलास 66 नाम का जो प्रजाति है, उनमें क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट, आयरन फोर्टिफाइड राइस, है ना। तो राइस में भी आयरन आयरन ज़्यादा मात्रा में होता है फोर्टिफाइड राइस में, और वीट एटलास 66 में प्रोटीन की मात्रा होती है। हैज़ 5 टाइम्स मोर आयरन आर डेवलप। तो ये क्यों, ज़रूरत क्यों है आयरन फोर्टिफाइड? तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स होती है, तो उनमें खून की कमी होती है, ब्लड जो है वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन और एनहांसमेंट के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, तो आयरन की गोलियां देते हैं डॉक्टर। पर अगर हम जो फोर्टिफाइड राइस है, अगर हम चावल खाते हैं, ऐसे चावल की जिनमें डायरेक्टली आयरन है, तो गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे राइस खाने से भी आपको 5 गुना ज़्यादा आयरन मिलेगा राइस खाने से। तो ये बेटर है या गोलियां खाना बेटर है? गोलियां खा के बॉडी में साइड इफेक्ट भी होते हैं आयरन की गोलियां खाने से, पर अगर फोर्टिफाइड राइस अगर खाए आप जिसमें आयरन ज़्यादा है, तो उसमें 5 टाइम्स ज़्यादा आयरन मिलेगा, और वो एक सिंपल एंड नेचुरल तरीका होगा आपको न्यूट्रिशन मिलने का। वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक कैरेट, स्पिनच हैव मोर विटामिन ए एंड मिनरल। तो क्रॉप्स जो है जैसे कि गाजर जो है, कैरेट, है ना, स्पिनच, पालक, तो विटामिन ए एंड मिनरल ज़्यादा होगा उनमें, फोर्टिफाइड में। विटामिन सी, बिटर गोट, करेला, टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय IARA। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI मतलब क्या, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐसा बिटर गोड और टोमेटो बनाए हैं कि जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह से ये जो एनहांसमेंट है या बायो फोर्टिफिकेशन है, न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ाना। बायो फोर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ाना। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ओके, तो दो कंसेप्ट हमने सीखे। इंट्रोडक्शन में हमने फूड की डेफिनेशन सीखी, और जो प्रोडक्शन है, एनहांसमेंट, प्रोडक्शन क्यों करना है, प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है ज़्यादा, तो पॉपुलेशन और जो अंडर न्यूट्रिशन होता है वो टालने के लिए। और दूसरी बात, जो बायो फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट हमने देखा, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे, और बायो फोर्टिफिकेशन का मीनिंग है कि न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ बढ़ाना। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है वो हमने सीखी।